यू हैव बिन, मतलब आपने IIM अहमदाबाद भी चले गए, IIT रुड़की भी चले गए, काफ़ी लोग का सिर्फ ड्रीम रहता है ये, ठीक है. व्हाट इज दैट वन फैक्टर दैट डिफरेंशिएटेड यू फ्रॉम द 99.5% अदर पीपल? समटाइम्स एक होता है कि यार जो क्लियर करता होगा वो क्या होता होगा, मतलब क्या बंदा होगा या क्या प्रिपेयर किया होगा. सब नॉर्मल बच्चे. What are some things that you would recommend in these 15-20 days कि यार ये चीज़ें तो रोज़ ही करना? You can improve or you can change the variance by 15-20% in terms of marks. Follow these 5 things again, just to summarize it for you. Steps. Hi everyone, welcome to the channel. This side Bhavit Taneja, and in today's video, first of all, this is my first podcast, and in today's video with us we have Shishir Arya, and he's a very dear friend of mine. I connected with him, and I asked him to come on the channel and to guide all of us. So this video is about the last minute preparation strategies that we can incorporate to improve our scores for exams. तो हम यहाँ पे जो लोग मेरी audience है, that are mostly IP MAT aspirants, but these tips can be applied to any exam, any competitive exam. And why I have called Shishir is because he is a person who has cracked the top colleges in India that we all aim for, ठीक है. So he is from IIM Ahmedabad. Yes, IIM Ahmedabad से MBA किया है, IIT रुड़की से BTech किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एक कन्वेंशनल पाथ जो सबको बताया जाता है, उसके टॉप के जो कॉलेजेस हैं, बोथ ही हैज क्रैक्ड एंड ही हैज स्कोर्ड above 99.5 percentile in both CAT and JEE. So definitely we have something to learn from him, from a person who knows ki what it takes to crack competitive exams, right? And also he is the founder of Heal Labs. He is an expert in managing stress, performance and happiness. And he has also taught MBA students, basically IPM students at IIM Jammu, at IIM Bodh Gaya. So he's also visiting faculty at IIMs. So he definitely knows what we all go through. So welcome Shishir. Thank you so much, Bhavya. Pleasure to be here. थोड़ा लंबा मैंने शायद आपको इंट्रो दे दिया, बट आई फील दैट यू डिजर्व इट बिकॉज यू हैव जेन्युइनली डन थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल मे बी ड्रीम ऑफ, राइट. एंड मेरा इस पॉडकास्ट पे आपको बुलाने का ये मकसद है कि हम लोग ये बता पाएँ स्टूडेंट्स को कि वॉट डिफरेंशिएट्स अ हाई परफॉर्मर फ्रॉम अ पर्सन हु हैज मे बी स्टडीड अ लॉट बट ही इज नॉट एबल टू give his best when he is sitting for the exams. And what I have seen a lot is that with me also, I would say that I was average at studies, but there was something in me that when I was giving the exam, मैं जो मुझे जितना आता है मैं अपना उसका बेस्ट देने का ट्राई करता था. But a lot of students that have been studying at my prep way and जिनको मैंने खुद से भी mentor किया, train किया, I saw that a lot of them were very bright and they knew a lot, but somehow I could not see that उनका जो result जब एग्जाम में वो जाते हैं देने तो उतना अच्छा नहीं आया. And I was also मतलब shocked a little, and I talked to those people and then I realized that there is something, एक edge है जो कि एक टॉपर में, यानी कि जो उस एग्जाम को टॉप कर रहा है, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत प्रिपेयर कर रखा है बट ही इज नॉट एबल टू गिव हिज बेस्ट. तो आई वुड लाइक यू टू शेड सम लाइट ऑन दिस, that why it happens ki some people are going performing very good in exams while some people who know a lot still are not able to perform their best. So you have cleared 2 of the most very difficult exams, JEE and CAT. So what has your journey been? What has your experience been? Okay, so again thank you once more, and it's about performance and performance pressure. So with the introduction you've given, I already have a lot of performance pressure to do well in this also, but let me apply some of the tips we are going to talk about. So let me tell you a story. The first time I gave IIT JEE, my rank was 3294. Even though the institute I was in projected my rank to be 600, but what really happened was on the day of the IIT exam, just the emotions and the stress and the lack of the mind cooperating took over. I remember coming back when the results happened and I was crying like anything, and I told my dad that this is not fair. मेरी तो ये रैंक डिजर्व ही नहीं करती थी, मेरे को तो वो रैंक होनी चाहिए थी, एटसेट्रा, राइट. एंड ही सेड टू मी समथिंग विच इज इन अ वे समरी ऑफ व्हाट वी विल डिस्कस टुडे. He said that
the management or the preparation of the mind is as important as the preparation of the material of physics, chemistry, maths, English, etc. Mind management is not separate from preparation. Mind management is the core part of preparation. So you may know a lot of physics, chemistry, maths, बट तुम्हारी जो रैंक आई है वही तुम्हारा सत्य है क्योंकि मन को तो तुमने प्रिपेयर किया ही नहीं. एंड दैट इज आई हैव सीन सो मेनी पीपल डू वेरी वेल इन मॉक्स, फाइनल डे पे वो निकल के ही नहीं आ पाता जो उन्हें पता है. एंड ऑल्सो पीपल हु मे नॉट डू एट ऑल वेल इन मॉक्स बट लास्ट डे पे पता नहीं फोड़ देते हैं. एंड द की डिफरेंस इज देयर कैपेसिटी टू मेक श्योर दैट व्हेन द मोमेंट अराइव्स वॉट एवर दे नो कैन एक्चुअली कम आउट, बिकॉज अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है. एंड अनफॉर्चुनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम रिलाइज ऑन नोइंग but not on this mental preparation at all. And that is the clear edge I've seen. CAT le lo, IIT JEE le lo, that's the one differentiator on the final day, and possibly the only thing that matters in the last 20-25 days, much more than these last minute preparations help. Right. So, what do you think are some of the things that helped you when you were giving these exams? And I'm sure that, sitting for these exams is enough pressure. JEE or CAT, already itna, we know lakhs of people are sitting for it. And when you have this performance pressure, यार कि इतने लोग बैठे हुए हैं, क्या मैं enough हूँ जितना मैंने प्रिपेयर किया है? बिकॉज देखो टाइम सबके पास उतना ही है, बुक्स सब लोग सेम ही पढ़ रहे हैं, तो ये डाउट आना बहुत नेसेसरी भी है कि यार जो मैंने प्रिपरेशन की है क्या वो एनफ है, एम आई बेटर देन द अदर्स, कैन आई गेट द बेस्ट कॉलेज? सो हाउ डिड माइंड मैनेजमेंट आपने कैसे किया ऑफ दिस व्हाइल यू वर गोइंग फॉर एग्जाम? Okay. So, let's talk of 5 pillars and we'll go one by one for us to get it in a structured way. So, the first thing is what should be the preparation strategy, and I'm not talking exactly कि कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है, but किस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाए लास्ट 2-3 वीक्स में, आई थिंक इज अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल फॉल्टर. आई रिमेंबर फ्रॉम एक्सपीरियंस, and I'm talking of IIT JEE, there is in chemistry there is something called inorganic chemistry, जिसको सो कॉल्ड बहुत रट्टे वाली केमिस्ट्री बोलते हैं, राइट? उसका एग्जाम में उतना वेटेज नहीं होता है, राइट? मगर उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा है. The difficulty or the problem that I faced was I spent way too much time doing the रट्टाफिकेशन of the inorganic chemistry, that उसके जो 2 क्वेश्चन आए वो तो हो गए फिर एग्जाम में, मगर उस टाइम में जो मेन चंक ऑफ स्कोर्स जो था उस पर फोकस नहीं हुआ, तो उसका रिसेंसी इफेक्ट कम रहा, तो उनमें स्कोर नहीं हुआ. तो अच्छा तो लगा जब वो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हो गए, मगर आई लॉस्ट सो मेनी मार्क्स बिकॉज आई डिड नॉट फोकस ऑन द बल्क ऑफ विच कम्स. सो जो भी टॉपिक्स आपके प्रीवियस एग्जाम्स के आपको पता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूट 70% और 80%, this is not the time for cramming. This is the time for deepening. Right? So that is the first part, which is not going for covering the breadth. कई बार हमारे मन में होता है ना कि अगर हम सब कर लेंगे ना तो सब हो जाएगा, लेकिन उस समय वो याद ही नहीं आता है जो सबका हम ब्रेथ पे जाते हैं. That's one. Second part of strategy which I wish I had done, which became again a factor for slight underperformance, was even while giving mocks before the 20 days, I wasn't very strategic. What's most important is that you try and attempt papers with different difficulty levels. आसान वाला भी करो, मीडियम वाला भी करो और मुश्किल वाला भी करो, बिकॉज उस दिन क्या आएगा ये हमें नहीं पता है. मगर प्रॉब्लम क्या हुई, एंड आई कैन टेल यू पर्सनली, आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मैथ्स which was very close to, I really used to love probability. Probability का एक क्वेश्चन आया and probability was very close to my heart, but वो solve नहीं हो रहा था. And since I had never practiced letting go and moving on, for me मैं उस पे अटक गया 15 मिनट तक कि ये हो क्यों नहीं रहा, ये हो क्यों नहीं रहा, ये हो क्यों नहीं रहा, और उतनी देर में गाड़ी निकल गई. If I would have practiced difficult questions or difficult mocks also, I would have practiced, and this is the most important, practicing letting go when it's not working out is the thing that differentiates a person who can go through the paper or not. So that's the first part of effective preparation strategy even in the past 18-20 days. Right. So yes, matlab I completely understand your point and it is completely fair because
this I would say that I was actually good at this. So as I said in the starting that मैं कभी भी उतना टॉपर नहीं अपने आप को मानता था कि and I was not really confident also that I would be able to clear the exam, especially if I talk about my journey when I was giving my IPMAT exam. I got to know about IPMAT in my class 12th only. ठीक है, एंड एट दैट टाइम आई थिंक बोर्ड्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, लास्ट का कुछ टाइम बचा हुआ था एंड आई हैड लॉस्ट ऑल होप कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा. मे बी जब मैं इतने डायर सर्कमस्टांस में था तो मैं अपने आप ही उस जोन में चला गया कि आई वॉज जस्ट लुकिंग एट वॉट इज इम्पोर्टेंट. ये चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, इसको पढ़ लो. करेक्ट. तो मेरे साथ सर्कमस्टेंशियली हो गया वो. बट यू आर राइट, जो लोग काफ़ी होते हैं जो एक साल से पढ़ रहे हैं and they spend a lot of time on topics that are actually not that important, और strategically थोड़ा पढ़ना चाहिए. And during the exam we should let go and of the questions that we are not able to do, we should not, उस पे ego वाली बात नहीं आनी चाहिए यार कि ये मुझसे solve कैसे नहीं हुआ. तो that is completely मतलब understandable. But my question is कि what are some of the actionable tips? अभी जैसे कि लास्ट 15-20 डेज बचे हैं, राइट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नो दैट जो भी देख रहे हैं दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, या तो उन्होंने सब पढ़ लिया है या मेरे जैसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कुछ अभी तक ढंग से नहीं पढ़ा है. ठीक है, फॉर बोथ इफ यू वांट टू इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ गिविंग एटलीस्ट देयर बेस्ट शॉट, क्लियर होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट टू गिव देयर बेस्ट शॉट, राइट. what are some things that you would recommend in these 15-20 days कि यार ये चीज़ें तो रोज ही करना, जो पढ़ाई कर रहे हो वो ठीक है, बट अदर देन पढ़ाई इन चीज़ों को इन 20 दिन में याद रखना. I see. Okay. So have you heard this thing called 21 days to change a habit? कभी Yes. सुना है, राइट? Yes. तो 21 डेज कहते हैं कि आपको कोई भी आदत बदलनी है तो आपको 21 दिन लगते हैं, राइट. नाउ इस समय आपके काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ रहे होंगे. करेक्ट. राइट. आपके काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो 1-2 बजे के बाद पढ़ के 10-11 बजे उठ रहे हैं. उनका शेड्यूल पूरा हिला हुआ है, राइट. नाउ a lot of times one needs to realize that the body doesn't work as per my willpower. अगर मैं जस्ट चाहूं कि अभी मैं एजाइल हो जाऊं, it is not like body is suddenly going to make a switch, right? Body is a creature of practice, right? The one thing that is possibly the biggest differentiator is the time when your exam is going to happen. Have you trained your body to become the most agile and energetic in that particular time period itself or not? ये बायो क्लॉक है एक, राइट. अगर आप रात को कोशिश करना, एंड आपसे मैं पूछना, सपोज आप रोज 1 बजे सो रहे हो, राइट. एक दिन आप कहते हो नहीं यार मैं तो 10 बजे सोऊंगा आज, राइट. आती है नींद, आ जाती है नहीं, राइट, बिकॉज अब माइंड को आदत हो गई है 1 बजे सोने की, राइट. द बिगेस्ट, एंड देयर इज ऑल्सो डेटा दैट टेल्स अस दैट 15 to 20% of performance variance happens basis the quality of sleep that a person has had before the exam night. Right. First thing I would definitely urge is आप अपना पूरा क्लॉक दिन भर का ऐसे सेट कर लो जैसे रोज आपका एग्जाम है. आप मॉक जब दे रहे हो, इट शुड बी एट एग्जैक्टली द सेम टाइम एट विच योर फाइनल एग्जाम इज गोइंग टू हैपन. आप सोने तब जाओ जब आप एग्जाम के एक रात पहले सोने जाना चाहते हो, राइट. बिकॉज वो क्या होगा, लास्ट डे पे आप आओगे वो नहीं होगा स्विच, एंड देन द प्रॉब्लम इज यू विल ऑल्सो गेट स्ट्रेस बिकॉज रात को नींद नहीं आ रही है और मुझे नींद नहीं आ रही है ये सोचकर नींद और नहीं आ रही है. ये होने एग्जाम भी है और एग्जाम भी है, और एग्जाम के स्ट्रेस में वैसे भी मुश्किल है, राइट. सो एनर्जी, how do you make sure your agility is at peak? Because that will become the differentiator again कि आप कितना focused हो कितना नहीं. जैसे for example हमें ही ले लो, we are not used to doing a podcast at 7:30 or when we are doing it right now, right? I can already feel within me कि वो उतने अच्छे से आइडियाज का फ्लो रेट नहीं आ रहा है, right. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे करने की आदत नहीं है. दिन में अगर होता तो शायद बात अलग होती है. द सेम थिंग स्टूडेंट्स नीड टू रियलाइज दैट अभी तक ना शरीर जैसा चला है वैसा चला है, लेकिन उस दिन नहीं चलेगा, राइट. सो अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट अगेन. सो आई थिंक दीज आर वेरी माइन्यूट टिप्स जो कि हमें कोई भी मतलब बताता नहीं है.
एंड ये पॉडकास्ट करने का मेरा आपके साथ रीज़न ही यही था बिकॉज आई वॉज श्योर कि इस पॉडकास्ट से डेफिनेटली ऐसी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी जो कि शायद मैं भी स्टूडेंट्स को नहीं बता पाऊंगा एंड इट ओनली कम्स फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस of how to clear this exam या any competitive exam for that matter. And you are completely right that you know having proper sleep and your bio clock should be this way कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो. एंड इसमें भी मैं अपने आप को अगेन वो मानूंगा कि मेरे थोड़ा घर में ही कल्चर यही है कि सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है. तो मेरे मतलब आई वॉज अ अर्ली राइजर बट आई एम श्योर मेरे बहुत सारे ऐसे ऑडियंस में मेंबर्स होंगे जो कि अर्ली राइजर्स नहीं है विच इज़ कम्प्लीटली ओके. आई फील हर बंदे का एक पढ़ने का टाइम कभी कभी अलग होता है. Correct. बचपन से. Just to clarify, Bhavya, it's not even just about sleep. Maybe you are sleeping at the right time, but जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो सकता है आप कुछ और देख रहे हो या किसी और काम में लगे हुए हो. मॉक मैं दे रहा हूँ शाम को एटसेट्रा. द आइडिया इज दैट यू ट्रेन योर साइकिल सो दैट आपको जब माइंड की जिस समय जरूरत हो उस समय के लिए माइंड ट्रेंड हो चुका है कि अभी जरूरत का समय है. नाउ ये ना यू आर राइट, ये बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं बट अगेन डेटा टेल्स अस इफ यू क्यूमुलेट द आइडिया ऑफ स्लीप and you accumulate the idea of taking care of your biorhythm, you can improve or you can change the variance by 15-20% in terms of marks. Not just that, I know a lot of people जो एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से, वो डू यू थिंक स्ट्रेस हैज एनीथिंग टू डू विद बीमार पड़ना, इम्यूनिटी? लाइक जब स्ट्रेस ज्यादा होता है जो इंसान और जो शांत रहता है, हु डू यू थिंक फॉल्स सिक मोर ऑफन? जो ज्यादा टेंशन लेता है. A lot of people near and around the exam fall ill, and that has also been shown to reduce your 15-20% of your actual work. बहुत छोटा लगेगा, but the bio clock, what your day looks like, and how your mental health and stress levels are on the day, and how your health is, they're all connected. And कमाल की बात यह है that they say that it typically takes around 2 weeks for you to reset some of your rhythms. So इससे मतलब this is so actionable that if you start today तो 2 हफ्ते बाद जाके फर्क आएगा जीवन में. So yeah. Right. And मतलब this is just a personal question. Were you always very smart, studious since the starting? Now मतलब you have been मतलब आपने IIM अहमदाबाद भी चले गए, IIT रुड़की भी चले गए. काफ़ी लोग का सिर्फ ड्रीम रहता है ये, ठीक है. You have gone through all of it, you have cleared those exams. So what is that one thing that you feel that यार मैं हार्ड वर्किंग बहुत था या मैं तो स्टार्टिंग से ही टैलेंटेड हूँ, या कुछ भी आपको लगता है कि what is that one factor that differentiated you from the 99.5% other people that you were able to get into the top colleges of India? थोड़ा सा मतलब if you can think about it. Sure, and I will respond with something that is also relevant to the preparation of the viewers right now. So I remember CAT exam के पहले my mocks were not going very well. Okay. I've always considered maths to be my very strong point, but mocks में मेरे percentiles बहुत हिले हुए थे. Right? The thing that really helped was that despite those mocks and the result that was showing, I kept telling myself कि शिशिर तू टेंशन मत ले, तेरा मैथ्स ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? रिजल्ट, and again I mean this in all, it's a matter of luck also, but I got 100 percentile in maths, which is maybe 8-10 people out of 3-4 lakh people who get 100 percentile in maths. Why is that? Because a lot of times when people in these final stages, you are also very vulnerable to negativity from what is happening to you. You will take a mock, कुछ स्कोर अच्छा नहीं आएगा, सबसे पहले इंसान खुद को ये बोलता है यार मेरे से तो ये नहीं हो रहा है, मतलब मेरी तो ये गिर रही है, इस समय क्यों गिर रही है, अरे हाय तौबा, राइट? द आइडिया इज if you keep repeating to yourself what you know you're good at, forget the mocks, doesn't matter, right? That positivity will carry you on that day, right? Matlab, let me ask you, even viewers can try this, right? If you say to yourself 5 times कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, right? अगर आप 5 बार ये बोलो लगातार और 1 महीने तक बोलते जाओ, आपको क्या लगता है, will that raise your level of hope and optimism
या वो परमानेंटली डिक्लाइन होने लगेगा जो ऑप्टिमिज्म। हो रहा था वो भी नहीं होगा। वो भी नहीं होगा, राइट? बिकॉज अब आपने आपको बोला इतना है। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ थॉट्स, it doesn't seem very natural, but if you repeat to yourself every day when you get up in the morning that I have done my hard work and I will do well, I have done my hard work and I will do well, you will start to believe it, and that belief often carries the day. I know a lot of people who are way smarter than me, right, who did much better in their mocks, but I think somewhere this factor of feeling convinced and continuing these affirmations, this psychology becomes the critical factor of differentiation. Okay, right? so you were saying that you had belief in yourself, you had that not overconfidence, but आपने मेहनत And I करी kept थी। repeating it to myself. Okay. Right? वो बहुत जरूरी है कि आप खुद को बोलो। कभी कभी हम सेल्फ टॉक करते हैं ना। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर आपकी कोई तारीफ करे या आपको कोई गाली दे, तो आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो, तारीफ या गाली? गाली के बारे में। गाली के बारे में, राइट? नाउ द माइंड इज इंक्लाइंड टू द नेगेटिव। इफ आई कैन अंडरस्टैंड दिस, तो मन नेगेटिव बोलेगा भी ना। मैं कहूँगा चाचा समझ गया मैं, तू मुझे वहां ले जा रहा है, पर मुझे पता है तेरी ट्रिक, मुझे पता है मेरे को मैथ्स आती है, कुछ नहीं होता, कर लेंगे। Actually, this was my next question that I was coming on, mocks के ऊपर ही। Mocks is important for practicing, but again mocks को लेके बहुत ज़्यादा एक तो mocks बहुत सारे होते हैं, हर कोचिंग सेंटर अपना मॉक्स बना के बैठा हुआ है। एंड वी शुड, मैं बहुत बार ये बोलता हूँ, अपने चैनल पे भी मैंने बोला है कि ये मॉक्स हैं, ये असली पेपर नहीं है। तो अगर हमें नहीं पता जिसने वो बनाया है उसने किस लेवल के क्वेश्चन उसमें डाल दिए हैं। अ लॉट ऑफ टाइम आई फेल्ट कि जो मॉक्स हैं कुछ लोगों ने बहुत ही हाई लेवल के बना दिए हैं, Right. शायद उतना पेपर हाई लेवल आ भी नहीं रहा है, राइट। या फिर कुछ ने बहुत ही इजी बना दिए हैं। तो हम मॉक्स के स्कोर को अपना फाइनल स्कोर मानने लगते हैं, और अगर खराब आ रहा है तो हम अपने आप को सेल्फ डिप्रिशिएट करते हैं। अगर कभी इजी मॉक दे दिया तो हम अपने आप को बहुत मतलब अच्छा भी मानते हैं। तो ये मतलब दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक यू क्लियर्ड इट आउट कि हमें मॉक्स के स्कोर को इतना दिल पे नहीं लगाना है कि हम उससे अपना जो आता है उसको भी सेल्फ डिप्रिशिएट कर लें और ये बोलें कि यार ये तो मुझसे नहीं हो रहा है। करेक्ट। एंड द अदर थिंग दैट ऑल्सो, so first of all, you know what the word mock means in English? What is the meaning of it? मॉकरी, किसी को मॉक करना, किसी को मजाक चिढ़ाना। तो अक्सर मॉक जो है लास्ट डे में चिढ़ाने वाला काम करते हैं, Right. राइट? दे डोंट गो एज पर प्लान, राइट? द अदर थिंग ऑल्सो इज वी हैड अ वेरी गुड रूल, especially in the last month of preparation, where they gave us this rule called 1:3, which is for every 1 hour that you give the paper, you need to spend 3 hours analyzing the paper. Right? Okay, Now, what really happens is, especially on the last days, you feel like you want to keep validating to yourself कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करूँगा। तो आप मॉक्स देने में लग जाते हो बहुत ज़्यादा, राइट? बिकॉज आपको हर स्कोर से हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ। उस एडिक्शन में, एंड सो कॉल्ड एडिक्शन में, you don't actually do the real work because the game is won or lost not on the mock but on the analysis of it. And I think that is also again a key differentiator. It's important to give mocks, but it's important to not start to seek that as a source of validation, and to keep going back to it to understand what you need to change about your strategy when you do the exam. वो analysis part अक्सर लोग नहीं करते. And I think that also becomes a very key difference in the strategy itself. And what about PYQs? मतलब I was a big believer कि मैं honestly मैंने इतने मॉक्स नहीं दिए थे before giving my exam, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था यार कि मॉक्स ये वाली एडिक्शन वाली बात है, मेरे नंबर आए चाहे ना आए ये पेपर है ही नहीं फाइनल, तो मैं इसको करके क्या करूँगा। मेरा फोकस होता था कि मैं PYQ समझ लूँ कैसे भी करके। तो मैंने मॉक एनालिसिस शायद उतना, क्योंकि मैंने मॉक्स दिए ही नहीं, मैंने मॉक्स एनालाइज किए ही नहीं अपने, पर मैंने PYQ बहुत एनालाइज करे थे। मतलब मैं आई यूज टू बी कि ऐसा समझता था कि मैं पेपर सेटर हूँ, और मैं पूरा पैटर्न एनालाइज करता था कि यार लास्ट इतने सालों में, और आई हैड अ प्रॉपर शीट कि इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन आए हैं, एंड इन वन ऑफ माई वीडियोज ऑन माई चैनल आई हैव शेयर्ड दैट शीट ऑल्सो, Right. कि टू जस्ट टू टेल कि देखो यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आई फील कि PYQs इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर टेक व्हेन यू So for the audience that doesn't know PYQ, especially NEET,
an IIT, can you clarify for them what PYQ is so that they understand? Previous year questions. Previous year question. So आजकल there are a lot of acronyms, etc. So PYQ. Again, I think at this point, most of your viewers or audience would have probably already done PYQs, right? If not, it's okay to take it, but even if you don't do it, I would say at this point it is more important to not want to exactly anticipate कि क्या आ सकता है. It is more important to introspect and see कि मुझे क्या आता है, मैं कितनी अच्छे से उस चीज को निकाल सकता हूँ. So maybe 2 months from the exam it's still okay, but I remember last के कुछ दिनों में I तो never went back to previous year question papers at all. Because I like, अब जो आता है राइट. अगर मैं देखूंगा और लगा यार ये नहीं आता, फिर मैं वो पूरा टॉपिक उठा के बैठ जाऊंगा और उस टॉपिक में फिर छोटी छोटी चीजें होंगी. योर रिमेंबर द स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई in this time. You don't get a thing, you become really stressed. You get a thing, that's okay. मे बी यहाँ पे वी आर कमिंग फ्रॉम थोड़ा डिफरेंट, बिकॉज एज आई सेड कि मैंने बहुत कम टाइम में प्रिपेयर किया था. तो अच्छा. मुझे लगता था यार कि जब टाइम इतना कम है तो मेरे पास ओनली वे इज PYQ से मैं समझ जाऊंगा कि पहले क्या आया है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा. सो मतलब दिस माइट वेरी यहाँ पे थोड़ा सा फॉर दोज पीपल जो अभी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है. मैं बोलूँगा भाई एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, तो मैं अपना लेवल समझ में आ जाएगा और क्या आता है वो समझ में आ जाएगा. बट हाँ, यू आर राइट, एट दिस लास्ट 15-20 days देयर इज नो पॉइंट बर्डनिंग योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि हम अपने आप को जितना फंसा लेते हैं लोग अपने आप को लास्ट के 20 दिन में बहुत ज़्यादा नए नए टॉपिक्स उठा के, नई नई चीज़ें उठा के, वो नहीं करना चाहिए. उसके तो मैं भी अगेंस्ट हूँ. एंड what would you recommend to a person? How should his maybe daily day look like in these next 15-20 days? Right. Anything? So I already spoke of the making sure your biorhythm. The other thing which will make me sound like an old baba is, again, you can't ever overestimate the importance of exercise or some physical activity. Well, again, and you can look up studies after studies. They say there's study which tells us that students who did yoga for a certain number of weeks before an exam actually had higher scores by a certain 40-45%. People who did meditation did much better because they were more focused. So 20% of the variance of marks happened because of that. Right. So आप में से हर किसी के मम्मी पापा दादा दादी एटसेट्रा, कई लोग तो सुबह उठते ही हैं जब कोई कपाल भारती करके आवाज़ों से सुनते हैं, राइट. प्लीज जॉइन देम इन द मॉर्निंग, राइट. गो फॉर दैट वॉक because you really need to make sure you're both from the perspective of physical health and also it makes the blood keep flowing, so you are much more at ease. Remember, स्ट्रेस अभी बिल्ड होगा बॉडी में. अगर आपने उसको रिलीज नहीं किया तो वो बिल्ड होते होते कल्मिनेशन पे पहुंचेगा एग्जाम के दिन. अब स्ट्रेस कहाँ पे आता है? लेट मी अगेन आस्क यू एंड even your viewers will identify this, right? Stress happens, right? Do you think anything happens to the सांस? तेज हो जाती है, right? Do you think anything happens to the body muscles या shoulders? Do they become tight or do they become loose when you're stressed? Tighten up. They become tightened up, right? Your stress is going to manifest at the level of the body. Which is why, again, let me tell you some practices, and I teach IPM students in the first year these very practices. Okay. Right? Which are one of the most prominent stress management practices. You can do it right in the exam. You can also do it as a practice every day so that your stress levels are down. मुन्ना भाई में एक डायलॉग था, उल्टा कर, right? The antidote to stress, अगर स्ट्रेस की वजह से सांस तेज हो रही है, so what's the antidote? क्या करें सांस के साथ ताकि स्ट्रेस कम हो जाए? सांस को स्लो कर लो और डीप कर लो, राइट. आई कैन गारंटी योर व्यूअर्स इफ एवरी डे फॉर 10 minutes all they did was deep breathe inhale and gentle exhale for 10 minutes, they will become much calmer,
राइट हम लोगों ने पॉडकास्ट से पहले भी ये किया है अभी है ना बिकॉज वी रियलाइज दैट वेन एवर वी आर डूइंग एनीथिंग इट काम्स अस डाउन बॉडी योगा लोग क्यों करते हैं वो बॉडी टाइट है आप रोज बॉडी को लूज करो थोड़ी स्ट्रेचिंग करो अपने आप स्ट्रेस रिलीज होगा राइट वी हैव टू अंडरस्टैंड माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड यू वॉन्ट टू मेक द माइंड फील लेस स्ट्रेस्ड आप बॉडी पे थोड़ा काम कर लो आप एग्जाम के दिन देखोगे यार आज तो शांति है थोड़ी सी वो शांति कैरी ओवर करती है एग्जाम में right. I feel that this is a good point because last के 15-20 days में the stress level keeps on increasing day by day and अभी मेरे को लग रहा होगा कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं एग्जाम क्लोज आ रहा है ये कह रहे हैं एक्सरसाइज कर लो अभी तो सारा टाइम पढ़ना चाहिए बट एक्चुअली वो नहीं है क्योंकि आई ऑल्सो फील दैट अगर तुम अब कितना 24 घंटे पढ़ लोगे क्या नहीं पढ़ सकते ना 24 घंटे तुम्हें 8 घंटे सोना भी है और चलो मैं पूछ ही लेता हूँ ये आपसे अगर मुझे पता है ये बहुत व्यूअर्स के दिमाग में क्वेश्चन होगा तो लेट इट बी कितने घंटे आप पढ़ लेते थे दिन में लास्ट के जब आप एग्जाम क्लोज है सपोज आपका 20 डेज बचे हैं तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो एक टॉपर से हम पूछना चाहते हैं नहीं या व्हाट वुड यू रिकमेंड so what I did wasn't necessarily right because of which I told you earlier that my rank got degraded ओके if I could go back I would probably do the 8-8 rule 8-8-8 rule ओके 8 hours of sleep 8 hours of study ओके and 8 hours of self what is that self of course you'll spend time grooming and khana vana etc on health etc but if you can spend that time relaxing that's going to yield much more benefit now remember unfortunately we often measure productivity or how much I'm getting done in the number of hours let me ask you a question और ये आप viewers भी अगर इंट्रोस्पेक्ट करें there was a Harvard study that was done across countries where they started to understand कि जब कोई इंसान पढ़ रहा होता है तो वो एक्चुअली में कितनी देर पढ़ रहा होता है और कितनी देर उसका मन कुछ कुछ और सोच रहा है या कहीं और गुम हुआ है एटसेट्रा एग्जाम में क्या होगा ये वो कैन यू गेस when we study for let's say 10 hours on an average what percentage of the time is our focus not on studies any guesses It's not on studies is not on studies 4 घंटा 3-4 घंटा हाँ so it typically it's been seen world over 50% of the time that you actually spend studying you're not focused there are people and this is average हर किसी का अलग होगा कुछ लोग ज़्यादा फोकस कर पाते होंगे कुछ लोग नहीं कर पाते होंगे but unfortunately we spend a lot of emphasis on time duration but we don't realize that if we spend time doing health etc our focus levels will increase in the same number of hours we'll actually get more study done right and that is what is also important at the day of the exam like if I can tell you something very funny on the day of the exam I was actually thinking of a specific girl that I really liked like एक relationship वाला वो था I'm doing like 2 साल की preparation के बाद today I need to be focused but मैं paper दे रहा हूँ and that girl's face is coming in front of me right that's because I didn't spend time trying to train focus you can like to your point you said कुछ लोगों का होता है उस दिन focus लग जाए but you should not leave it to chance because उस दिन क्या होगा you want to be prepared for कि कुछ भी हो यार focus होना चाहिए उस दिन सुबह कुछ हो गया आप क्या होगा गाड़ी में जा रहे होगे right कुछ बीच में एक्सीडेंट हो गया कुछ लग गया ये वो वही चला गया आज का तो दिन ही खराब है right and the mind is so strong that it can take you into that direction right तो आप एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं हुआ ना फर्स्ट थिंग कम टू यार आज सुबह वो भी हुआ था आज का तो दिन ही खराब है आज मेरा पेपर अच्छा होगा ही नहीं ये बहुत जल्दी लूप आता है एग्जाम के अंदर so I think मतलब I listened this somewhere कि mind is a very good servant but it's a very bad master राइट which I feel is very apt राइट कि मतलब अगर हम माइंड की बात सुनने लग गए तो ये बेचारा डरता बहुत है मैंने देखा है ये हर चीज से डर जाता है और आपको भी अपने साथ लेके डरा देगा बहुत बुरा और जो आपने बोला सही है कि आज का दिन ही खराब है इस बार तो मुझसे नहीं हो पाएगा ये अच्छा वाई आई केम टू दिस क्वेश्चन कि कितने घंटे पढ़ते हो बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कि लोग पूछते हैं
और शायद इस बेस पे वो अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर भी करते हैं. एंड आई समहाउ गेट दैट कि वो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी. व्हेन आई वाज इन माय क्लास 12th, मैं 10th-12th तक बहुत पढ़ता था, उसके बाद भी पढ़ा हूँ, बट 10th-12th में आई वाज लाइक वेरी स्टूडियस. तो एट दैट टाइम आई हैड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बट हम तीनों एक हेल्दी कंपटीशन में रहते थे कि यार अच्छा तेरे इतने आए, मैं भी पढ़ के आऊँगा, मेरे भी इतने आएंगे, ये वो. एंड मेरे को घर जाके लगता था दैट इफ आई वांट टू आउट परफॉर्म दैट पर्सन, पहली बात तो ये तरीका ही गलत है पढ़ने का, कि आप किसी को आउट परफॉर्म करने के लिए पढ़ रहे हो. पर मेरे को समझ आता था कि यार क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन है, तो अगर उसके इतने मार्क्स आए हैं तो मैं और ज़्यादा लेके आऊँगा. और मुझे लगता था और ज़्यादा लाने का मतलब है और ज़्यादा आवर्स देना. राइट. एंड उस चक्कर में मैंने अपने आप को बहुत बर्न आउट किया. और दुख तब होता है जब आप देखते हो कि यार मैंने ज़्यादा पढ़ा, मेरी शायद मैंने हॉबीज़ भी ख़त्म कर दी, मैं पूरे टाइम पढ़ता ही रहता हूँ. वो इंसान जो शायद ड्रम भी बजा लेता है, जो खेलने भी चले जाता है, जो मुझसे कम पढ़ रहा है, वो मुझसे ज़्यादा नंबर ले आया. राइट. एंड देन आई रियलाइज कि यार आर्स के ऊपर नहीं होता. एंड आई रियली लाइक दैट, क्योंकि लोगों को आजकल रूल चाहिए होता है कुछ ना कुछ, समहाउ मुझे लगता है. एंड दैट 8-8 रूल, लाइक 8-8-8 रूल इज गुड, बिकॉज 8 आवर ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए भैया दिन में, मैं तो रिकमेंड करूंगा मत करना है 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई, भले ही लास्ट के 20 दिन हो चाहे लास्ट के 2 दिन हो. एंड 8 घंटे अपना माइंड प्रिपरेशन और रिलैक्सेशन, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना. एंड नाउ व्हेन वी आर ऑन दिस ब्रेक वाला टॉपिक कि हाउ टू टेक दिस ब्रेक, in this podcast we discussed a lot of good techniques that you told the audience. And coming this from a person who has cleared all these exams, I'm sure these are actually, अगर आपके लिए वर्क करी हैं तो आई थिंक इट विल वर्क फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो एंड दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट. बट आज की डेट में देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. डे बाय डे जो और जनरेशन्स जो हमसे भी और छोटे भाई बहन हैं हमारे, उनके हाथ में 2400 घंटे फ़ोन चिपका हुआ है ऑलमोस्ट. बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस वक्त अपना मतलब उन्होंने खुद एक मेंटल वो बनाया होगा कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा. इफ़ दे आर डूइंग इट वेरी गुड, बट अ लॉट ऑफ पीपल आई फील कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन से दिल टेक कि अच्छा 8 घंटे रिलैक्स करना है, मतलब कि 8 घंटे अपना फ़ोन देखना है. तो आप बस ये क्लियर अगर कर दो कि वो 8 घंटे में रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि हमें फ़ोन देखना है, और अगर फ़ोन देखना है तो कितना देखना है, और अगर ज़्यादा देख रहे हैं तो क्या नुकसान भी हो सकता है, वो भी अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ इफ़ यू वांट टू शेड लाइट ऑन. I see. No, and it's a good point you're making. Studies tell us that irrespective of which country, which age group we are talking about, the number of hours of phone are directly correlated with your distractibility and lack of focus. So when somebody says chill का मतलब फोन के लिए अगर आपने 2 घंटे चिल किए तो आपने -2 कर दिया है, +2 नहीं. राइट. ये दिस इज अ वेरी राइट प्रॉपर कैलकुलेशन देयर. राइट. और ये मैं बस यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ क्यों होता है, बिकॉज आई फील कि इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल, आई टेक इंस्टाग्राम एग्जाम्पल बिकॉज मैं भी काइंड ऑफ एडिक्टेड हो गया था एक पॉइंट में इंस्टाग्राम से. नाउ आई हैव अपने आप को दूर किया है मैंने उससे, बट दैट इज सो एडिक्टिव एंड अटेंशन स्पैन मेरा इतना कम हो गया कि मैं किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता था, बिकॉज माइंड ट्रेन हो गया है कि अगर नहीं पसंद आ रहा है तो हटा दो. स्क्रॉल करने का इतना ईजी है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है तो मैं उस पर टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहता, और मेरा मेंटल एक चीज़ पे फोकस करने का जो मेंटल मेरी पावर थी वो खत्म हो गई. करेक्ट. यूजिंग इंस्टाग्राम, इट इज़ लाइक अ सिगरेट इफ आई कंपेयर टू. जैसे सिगरेट है वैसे आई थिंक इंस्टाग्राम है, इक्वली बैड फॉर, एक आपकी लंग हेल्थ के लिए खराब है, एक आई थिंक आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए खराब है. बहुत सही है. अगेन to make it even more even more clear, let's say मैं आपसे कहता हूं 5 मिनट आप शांति से बैठो, केवल अपना कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करो या किसी एक चीज में ध्यान लगाओ, और मैं आपसे कहता हूं कि 5 मिनट तक सोशल मीडिया पे ध्यान दो. राइट. विच ऑफ द टू डू यू थिंक इज ईजियर, पेइंग अटेंशन टू सोशल मीडिया और पेइंग अटेंशन टू सम प्रोडक्टिव वर्क ऑफ योर preparation? Social media, right? The broader point is, remember, जिस चीज को जितनी आसानी से आदमी enjoy करके engage कर पाता है, आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को वैसा ही बना लोगे.
तो अगर आपने 2 घंटे, एंड आई मीन दिस वेरी सीरियसली, अगर आपने 2 घंटे सोशल मीडिया पे बिताए, एग्जाम के दिन अगर क्वेश्चन ऐसा आया जिस पे फोकस की जरूरत है, आपने फोकस को वैसे ही डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, तो उस समय आपका दिमाग दौड़ेगा ही नहीं उस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि अब आपका मन क्या है, मन को है नहीं यार, यार ये नहीं हो रहा यार, ये आगे नहीं, नहीं यार आगे, बिकॉज अब वो सोशल मीडिया पे देख देख के यू बिकम वेरी वेरी ट्यून टू नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट नॉवेल्टी एटसेट्रा, योर पेशेंस लेवल विल गो डाउन. सो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको चाहिए कि यार मैं 1 मिनट और इसको सोच लूं अच्छे से, मगर आपने अपना पेशेंस तो ऐसा ट्रेन कर दिया कि वो रहेगा ही नहीं. तो you will lose out on the question, you will lose out on focus itself. Right now, apart from watching this podcast, I would say don't watch it. Don't even rely on your own willpower. Most kids will be staying with their parents. पेरेंट्स के साथ में आज अभी इसी वक्त एक पैक्ट बनाओ कि मैं आपको फोन जब मैं मांगू तभी आप देना, और मुझसे पूछना क्यों, और जितनी देर के लिए मैं मांगू उतनी देर के लिए ही देना. बिकॉज पेरेंट्स कैन बी हेल्पफुल दैट वे. दे कैन बिकम द, मुझे लगता है ना, हाँ यार मेरे को आता है फोन मैनेज करना, आप मुझे मत बताओ, राइट यार. Mark Zuckerberg and all the social media companies have deployed such amazing strategies to make sure that you are engaged, that you are simply no match to what they have engineered. There are best brains working in the world to make sure that you don't leave Instagram. Right? आपका विल पावर विल डू नथिंग. उसको पता है आपको किस चीज में मजा आ रहा है, वो आपको वही दिखाएगा. एल्गोरिदम ही वैसा है. सो या राइट. एंड मे बी जिन्होंने वो ऐप बनाया है वो मे बी यूज कर ही नहीं रहे हैं. करेक्ट. करेक्ट. देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ some people saying हमने अपने बच्चों को अलाउ ही नहीं किया है, people who have created some of these social media apps. So at your time of preparation, what do you think कितना इफेक्ट था सोशल मीडिया का, या आपके ऊपर कितना था? Right. What was your experience Yeah, with the that? good thing was for me it was almost what 10-12 years back. I was fortunate to not be in the generation where social media was a thing. Even mobile phones we had, but we had not that fancy smartphones. Right? आजकल तो Apple iPhones. हाँ मतलब right. So Right. So I think with this podcast we have covered a lot of good techniques, and I'm sure कि जो viewers हैं they have definitely learned something from your experience. And before we wind up this podcast, I would like you to also tell more about yourself, a little bit about your personal journey, because you, like I'll just tell you he has done IIT, he has done IIM, and currently he is the founder of Heal Labs. So what do you do at Heal Labs? What is it exactly? What is your life about now? What have you seen till now? ये IIM में जाके, IIT में जाके, you have worked also, you have worked in Deloitte, you have worked in big names, big companies. तो अभी like what are you doing right now at Heal Labs? And if you can, and you are a visiting faculty at, you are teaching IPM students also. So थोड़ा सा अपना personal journey. Okay. So the journey is very simple in a way. It was always about किसी तरह खुश होना है. It went to IIT, thought कि इसमें खुशी मिलेगी, but उसमें हुआ नहीं. Like IIM बोलते थे सब, IIT IIM करो, वो भी कर लिया, नहीं हुआ. Then you get enough money, pay package upwards of 25 lakhs or so, right? But even after a while you do all of that and you realize यार नहीं हो रहा है, मतलब शांति जो चाहिए थी, जो पीस या जो हैप्पीनेस था वो नहीं चाहिए था. सो देन आई टुक अ सबैटिकल 2 साल का 2018 के अराउंड, एंड रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड हैप्पीनेस कि भैया ये मतलब है कहाँ, राइट. एंड नाउ इवन फॉर एग्जाम्पल इन IIM बोध गया, I teach a course called Emotional Intelligence and Mindfulness. Okay. In several other IIMs, I teach courses on happiness. Everything is about helping people understand and become more at ease with themselves. Even this podcast, for example, stress management, etc. The days I am calmer, I don't just perform well, I feel nicer about life. And in the end, that's all that we are working for, right? कि किसी तरह मैं खुश रहूं. Of course, money is a part of it. But money will not lead necessarily always to you feeling happy. Otherwise, the richest people will be the happiest people. So the entire aim of Heal Labs is to help students, especially youngsters, understand what's the journey one needs to undertake to feel fulfilled, to feel happy.
You earn money. Money is a side consequence. But how do you intrinsically become more peaceful? That's the broader aim. With corporates also, I've started working with educational institutions also. राइट स्टिल अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं Please. पूछना चाहूँगा मतलब मैं डीमोटिवेट किसी को नहीं करना चाहता आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर टुडे प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज बेसिकली द मोटिवेटर इज मनी पावर या मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूँ फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ले लो Right. लोग क्यों कर रहे हैं दे वांट टू गेट दैट पावर या Correct. वो पोस्ट चाहिए Correct. या कैट ले लो क्यों चाहिए क्यों जाना है आपको मेन एम क्या है आपका मेरे को 1 करोड़ का पैकेज चाहिए मुझे 25 लाख का पैकेज चाहिए 50 लाख का पैकेज चाहिए तो ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी इस स्टेज में हैं अपनी 12th में हैं सोसाइटल हमारा इंडियन सोसाइटी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वैल्यू देती है कि अगर तुमने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया ना तो तुम पीछे रह जाओगे बाकियों से तुम्हारा पैकेज उतना ही लगेगा जितना तुम्हारे दोस्तों का लग रहा है तुम्हारे दोस्त शायद ज़्यादा खुश हो जाएंगे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे और तुम पीछे रह जाओगे और जो इस वक्त प्रिपेयर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स आई एम श्योर उनके कहीं ना कहीं दिमाग में ये डर पक्का होगा कि यार मैं इनफ नहीं हो पाया मेरे से इस बार शायद एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा मैं IIM इंदौर नहीं जा पाऊँगा मैं IIM रोहतक नहीं जा पाऊँगा अगर मेरे को IIM नहीं मिला तो क्या होगा तो ये एक बहुत बड़ा डर होता है एंड partly reason of calling you and I am very happy that you are the first guest जो मतलब ऐसे podcast में आए हैं and this is the first podcast that I am doing on my channel. I wanted to bring someone who has done it all. जिन्होंने देख लिया है IIM भी देख लिया है IIT भी देख लिया है जो viewers यहाँ पे हैं जो आप लोग करना चाह रहे हो वो ये उसके फिनिशिंग लाइन पे हैं ऑलरेडी तो इसलिए मेरा यहाँ पे ये आई कॉल्ड यू एंड आई वांटेड दिस पर्सपेक्टिव फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि जो लोग मनी का एम रख के चल रहे हैं और आई एम श्योर 99% देखो लिमिटेड सीट्स हैं सब लोग सिलेक्ट नहीं होने वाले Correct. है ना कुछ लोग होंगे जो एम कर रहे हैं IIM इंदौर का IIM रोहतक का उसमें चले जाएंगे रांची का जो भी IPM है या कैट कर रहे हैं लिमिटेड सीट्स हैं लिमिटेड ही लोगों को मिलेंगी 99% people will have to go with their hands folded. So what is your message? What should their actual motivation be? या फिर क्या पैसे के लिए पढ़ना और एग्जाम क्लियर करना गलत है मतलब यू हैव डन इट यू लेफ्ट कॉर्पोरेट यू डिड द बेस्ट कॉलेजेस तो आपका क्या है इसमें थोड़ा सा लास्ट एक तो भव्य आई थिंक मैकडोनल्ड्स का जो CEO है ना उसने बड़ी एक अच्छी चीज बोली थी उसने ये कहा कि आपको लाइफ में एट एवरी पॉइंट यू शुड डू वॉट यू थिंक यू नीड टू डू जैसे अभी जो आपके व्यूअर्स हैं आई एम रियली टेलिंग देम आप जी जान से एकदम IPM के पीछे यू शुड बी पैशनेट राइट नाउ राइट बिकॉज राइट नाउ दैट्स योर एम राइट बट ही ऑल्सो सेज दैट रिमेंबर यू विल चेंज एज अ पर्सन 5 years from now so what you think today you will like 5 years from now that person may not necessarily agree with you the viewers and everybody should recognize there is no template of a journey which once one gets to they will be happy right I know so many of my colleagues from IIM also within 1 year I know a friend who went to McKinsey again the biggest consulting firm after that she's like नहीं हो रहा है मतलब मेरे को ये नहीं करना है she started her own outdoor touring startup where she used to go take people to Goa and do surfing together etc right there are also people who went to McKinsey and are still there people should realize कोई टेम्पलेट है ही नहीं और आज से आप अपनी लाइफ को चार्ट नहीं कर सकते बिकॉज आप खुद को सोचो आपने जो बोला था क्लास 5th में कि आप क्या बनना चाहते हो और आज जो आप सोच रहे हो दोनों में फर्क होगा द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इवन 5 years from now so do what you get if you don't get it you will chart your own journey and the next thing will inform you what do you like and हम लोग ये पॉडकास्ट सोच के थोड़ी ना मैंने कभी नहीं I the last thing in life I thought I will do is entrepreneurship the last thing in life I thought I'll do is teaching right some people say like IIT किया IIM किया and now you teach IPM students on happiness ये कब how would I have known this right but the journey will keep informing you so at every point take the journey that you feel is the one for you but keep self reflecting also if that journey is taking you where you wanted it to take you that's my core message to everybody
not just to your viewers. एंड एनी मैसेज फॉर द पीपल हु आर स्टिल फीलिंग लो, थोड़ा सा कि उन्हें लग रहा है कि यार अगर मुझसे एग्ज़ाम ये क्लियर नहीं हुआ, जो मेरे पेरेंटल सोसाइटल जो मेरे ऊपर प्रेशर है सारा, अगर मैं उस पर खड़ा नहीं उतर पाया, इफ़ आई डोंट गेट दिस जॉब, Right. तो वो बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है फॉर सम स्टूडेंट्स. सम पीपल आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम विच दे डेफिनेटली वांटेड और नहीं हो पाता है, तो उनके लिए आप कोई टिप उन्हें देना चाहेंगे कि अगर कल को नहीं भी होता है, देखो मेरी टिप ये रहती है कि डू योर बेस्ट, Right. गिव योर बेस्ट, लीव रेस्ट टू गॉड. जो होगा अच्छा ही होगा, नहीं हुआ तो उसमें भी कुछ अच्छाई होगी, वो आपको दिख नहीं रही है, वो आपको कुछ साल बाद दिख जाएगी, लेकिन आपको बस रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है. ये मेरा पर्सपेक्टिव है. बाकी आप इसमें ऐड कर सकते हो थोड़ा. So, again, for the benefit of the viewers, again, a personal detail. How much I was earning 10 years back, as of today, I am earning maybe half of it. People typically go in the other direction, right, where they go up. To a lot of people around me, it is like, यार ये क्या हो गया, right? But you realize at some point of time मेरे लिए क्या valuable है और मैं वो choices लूँगा. One. Second, let me tell you in a very funny way, I teach in IIM's IPM people first year, and I can tell you that even they are not happy कि यार मेरा परसेंटाइल थोड़ा और आता तो वो कॉलेज मिल जाता, वो आता, राइट. नो मैटर वॉट यू डू, राइट. रिमेंबर, आपको याद होगा अगर आपके 10th में अच्छे नंबर आए थे, जो भी खुशी थी वो थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर वैसी चली जाती है. द सेम थिंग इज ट्रू विद दुख ऑल्सो. दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट कि जिन लोगों का कार एक्सीडेंट होता है 6 महीने बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी लाइफ में, उनकी खुशी लेवल्स में. सो वॉट एवर हैपन्स यू विल गेट थ्रू इट. वॉट एवर हैपन्स यू विल क्रिएट योर ओन नेक्स्ट प्रॉब्लम एनीवेज. So it's important to recognize कि आप वो करो, right? The other thing which is important, which I think doesn't get addressed enough, your viewers should know, again, I teach these students so I can see it in them. Sometimes एक वो होता है कि यार जो क्लियर करता होगा वो क्या होता होगा, मतलब क्या बंदा होगा या क्या प्रिपेयर किया होगा, एट्सेट्रा. सब नॉर्मल बच्चे हैं. They come, we discuss relationship issues also, we discuss depression also, we discuss life में क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं चल रहा. If you are watching this, you are no different. It doesn't take you to be different to crack this exam. You just stay at it. हो जाएगा. I think this was a very insightful podcast for, I'm sure, for the audience also, as well as for me also. And I would really like to thank you that you came as a guest in our podcast and you helped a lot of students. So thank you so much, and I hope all of you also liked the podcast and you are taking away some actionable tips that you can apply in these 15-20 days. And ये सिर्फ tips की बात नहीं है, this was to give you a perspective on life from a person who is ahead of us. थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ, so मेरा ये रहता है कि मैं जितना मुझे आता है वो बता दूँ, but you are थोड़े years ahead of me also, so the things that he can tell you I cannot also tell. So I think it was Thank you so much for the respect, and I am really humbled. So thank you so much, Bhavya, for calling me, and best wishes to your viewers. Please, next few days, thoda sa follow these 5 things again, just to summarize it for you. Steps. S for effective strategy of preparation. T for managing tension. E for managing your energy levels by making sure that your biorhythms are attuned. P for making sure that you are working with your psychology. Affirmation, बोलो खुद को कि मैं अच्छा करूँगा. And final S for sleep. Most important, can't give it weightage enough. Steps are going to take you through. Thank you so much. Thank you.